हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चंस और उसका डिस्कशन लेते हैं. आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट solving the questions. So this is the first question which was asked in JEE Mains 2020, 2nd of September, shift 1. Okay, so what is the question? There are two trains, train A and B, which are running on parallel tracks in opposite direction with the speeds of 36 km per hour and 72 km per hour respectively. Okay, let's first draw the diagram. Okay, so let this is my car, train A, sorry, and this is my train B. Okay, this is my train B. So train A is moving in a right direction. Okay, velocity of A with respect to ground, it is given to you, which is 36 km per hour in right direction. Okay, train B is moving in opposite direction, right? So velocity of B with respect to ground is 72 km per hour in the left direction. Suppose A is moving in the right direction, so B is moving in the left direction. Okay, and let's go to second sentence. A person is walking in a train A. Person is walking in train A in opposite direction to its motion. Means ए राइट में जा रहा है तो पर्सन जो है इस ट्रेन ए में ट्रेन के अंदर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 1.8 किलोमीटर पर आवर. लेट्स ड्रॉ ओवर हियर. सपोज देयर इज अ पर्सन ओवर हियर. ओके, एंड दिस इज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन. ओके, सो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ए इज गिवन टू यू 1.8 किलोमीटर पर आवर and this is in the left direction. Okay, with respect to A. So now we need to find out speed in meter per second. Remember the question में देखो आप सब किलोमीटर पर आवर में दिया है, बट आंसर आपको मीटर पर सेकेंड में पूछा जा रहा है. So speed of this person as observed from train B. Okay, so basically they are asking you velocity of man with respect to B. They are asking you this. Okay, so can we write velocity of man with respect to B as a velocity of man with respect to A plus velocity of A with respect to B, right? थोड़ा और लिखते हैं तो velocity of man with respect to A को रहने देता हूँ मैं, and velocity of A with respect to B को लिख सकता हूँ मैं velocity of A with respect to ground minus velocity of B with respect to ground, right? Now I will fill all the values, right? What is velocity of man with respect to A? It is 1.8 km per hour, but it is in the left direction. We know all these all are velocity means vectors, right? तो let मैंने left direction को negative मान लिया और right को positive मान लिया. So what will be the velocity of man with respect to A? It is 1.8 in left direction, so I will write minus 1.8. Okay, then plus velocity of A with respect to ground is 36 in right direction, so I will write plus 36. Okay, minus what is the velocity of B with respect to ground? It is 72 in left direction, so I will write minus 72, right? So we can see that it will be like 108 minus 1.8. It is kilometer per hour, right? So it will be 106.2 kilometer per hour. We can convert it into meter per second. Question to meter per second में तो it's very simple. 106.2 into 1000 meter upon 3600 second. बच्चे को तरह कर लिया हम लोगों ने. You can solve this data and you will get it is equal to 29.5 meter per second. So this is my answer, right? चलो ऑप्शन चेक करते हैं. ऑप्शन में है 29.5, ऑप्शन में है दिस इज ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. ओके, अच्छा ये तो मैंने ऐसे कर दिया. आप लोग ऐसे करो कि हर एक क्वेश्चन के बाद डिस्कशन से जस्ट पहले आप रुक जाओ और ट्राई करो खुद सॉल्व करने का, और फिर सॉल्व हो जाए तो ठीक है, फिर आप देख सकते हो मैंने कैसे सॉल्व किया, आप मैच कर सकते हो. Maybe your solution is better or smart solution, maybe mine, whatever is better, आप उसको फॉलो करें, राइट? चले हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ओके, सो व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? चलो रीड करते हैं हम लोग पहले. अब आप क्या करोगे, यहाँ पे रुक जाओ, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट करो. Starting from the origin at t is equal to 0, okay,
with the initial velocity of 5 j मीटर पर सेकेंड, जे कैप है देखो आप. A particle moves in a xy plane with a constant acceleration of this much. Okay. So क्या क्या दिया हुआ है अब पहले देखते हैं. Starting from origin. So initial position, आप इसका initial position particle की क्या है, आप कह सकते हो x भी 0 है सर और y भी 0 है, क्योंकि origin पे xy plane में जा रहा है तो मैं z से ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं z, तो at t is equal to 0 ऐसा है, origin पे है. Initial velocity of particle means u, velocity u is 5 j cap. So can I write 0 I cap plus 5 j cap? It is in meter per second. I am leaving it. Particle moves in a xy plane with a constant acceleration. Acceleration is given and that is given as a constant. So what is constant acceleration? It is 10 I cap plus 4 j cap meter per second square. लिख देता हूँ इसको भी, चलो मीटर पर सेकेंड है ये और ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. ठीक है. एट टाइम टी इट्स कोऑर्डिनेट्स आर, अब आपको बताया एट टी इज इक्वल टू टी, ओके, और पार्टिकल की कोऑर्डिनेट दी हुई है 20 मीटर एंड वाई नॉट मीटर. ओके, सो दे हैव आस्क यू व्हाट इज टी एंड व्हाट इज वाई नॉट. ओके, ये दोनों आपसे पूछा गया. ओके, समझ में आ गया. चलो अब एक बात गौर करो, आपको पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट पता है, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट, और इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट पता है. मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज एक्स डायरेक्शन आपको पता है, x2 minus x1, obviously it is going to be 20 meter, right? So do we know how to find out sx? Yes, it is uxt plus half axt square, right? So what is sx? It is 20 meter. मैं लीव कर रहा हूँ, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ. What is ux? Isn't it? ux is 0. Okay, आई कैप के बाजू वाला होता ये 0 ही हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट मैंने 0 रहने दिया, प्लस हाफ ये 0 हो गया, प्लस हाफ ए एक्स. व्हाट इज ए एक्स? ए एक्स इज 10, राइट. 10 मैंने लिख दिया 10 टी स्क्वायर. तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि टी की वैल्यू मुझे 2 मिल जा रही, राइट. टी इज़ 2 सेकेंड. सो ये मेरा एक पार्ट हो गया, इस आंसर का एक पार्ट हो गया, राइट. टी इज़ 2 सेकेंड इज वन पार्ट ऑफ माई आंसर. नाउ दे हैव आस्क्ड यू वाई नॉट ऑल्सो, राइट. Isn't it? Can I write sy is equal to final y2 minus initial y1, right? So final was y0 and initial was 0. So displacement in y direction is y0. Okay. I will move on to next page. Okay. So let's go. So my sy was y2 minus y1. So it was y0 minus 0. So it was y1. So can I write sy is uyt plus half ay t square, right? So sy is y0. What was uy? I can see that uy is 5, right? This is 5 and ay is 4, right? Uy is 5, ay is 4. So I will write uy is 5, t was 2 second plus half ay was 4, right? Into 2 का स्क्वायर. t का वैल्यू हम लोगों ने 2 निकाला है, तो ये 10 हो गई प्लस 8, sorry, 10 plus 8. So it is 18 मीटर, राइट. सो ये भी मेरा आंसर हो गया. तो y नॉट की वैल्यू 18 मीटर हुआ और t इज़ 2 सेकेंड, राइट. चेक करते हैं हमारा. सो t इज़ 2 सेकेंड a में भी है, c में है, और y नॉट 18 है, राइट. सो मेरा a ऑप्शन राइट हो गया. ओके, सो माई a ऑप्शन इज़ राइट. चलो सिंपल क्वेश्चन है, राइट. कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया. ओके, चलो हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे अब चलते हैं. इसमें थर्ड क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं भाई साहब. अ टेनिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट h, ओके, स्मॉल h से गिराया गया है, एंड आफ्टर फ्रीली फॉल कर रहा है भाई साहब, याद रखें, ऑन अ वुडन फ्लोर. ओके, ऑन अ वुडन फ्लोर इट रिबाउंड्स एंड रीचेस टू हाइट h2. ओके, पहले ये डायग्राम बना लेते हैं हम लोग. ओके, कैसे बनाएंगे डायग्राम, चलो नेक्स्ट पेज में करेंगे, पढ़ लेते हैं पहले. द वेलोसिटी वर्सेस हाइट ऑफ द बॉल, वी नीड टू ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस हाइट ऑफ बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन. ओके, और आपको ग्राफ बनाना है एक्चुअली वेलोसिटी वर्सेस हाइट का. तो पहले सिचुएशन क्या है वो मैं कर लेता हूँ. ओके, व्हाट इज़ द सिचुएशन इज़ लाइक दिस कि एक ग्राउंड है, यहाँ पे आपने h हाइट से आपने रिलीज़ किया एक पार्टिकल को. तो इनिशियली u 0 था. ओके,
ये पार्टिकल एच हाइट तक आएगा और आप थोड़ा भी काइनेमिक्स पता होगा तो यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी जो होगी √2gh हो जाएगी, राइट। नीचे की तरफ है, सपोज मैंने माइनस साइन लगा दिया वेक्टोरियली। अब ये टकराने के बाद सिर्फ h/2 हाइट तक ही पहुँच पा रहा है, मीन्स ऐसे जा रहा है और यहाँ से h/2 हाइट तक ही पहुँच जा रहा है, ओके। और यहाँ आके फिर से वेलोसिटी 0 होगी। ऑब्वियसली इफ़ यू नो इट विल बी लाइक अ पार्शियल इन इलास्टिक कॉलिजन, आप कॉलिजन के चैप्टर में पढ़ोगे, तो रहने दो। तो मुझे यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगी वो निकाल सकता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगी, टकराने के बाद की वेलोसिटी, राइट। तो मान लेते हैं कि ये टकराने के बाद की वेलोसिटी सपोज कुछ भी u मान ले, u0 मान लेता हूँ मैं। तो कहना राइट v² = u² + 2as, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ से मैं नीचे से लेके ऊपर तक की बात कर रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी 0 = u0² + 2a की वैल्यू -g होगी, राइट। हवा में है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डाउनवर्ड है तो -g, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, h/2 रही है, राइट। ठीक है, क्लियर है। नीचे से ऊपर गया तो ये हो गया। इफ़ यू कैन सी फ्रॉम हियर इट विल बी u0 विल बी √gh, ओके। सो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई थी, √gh हो गई थी, सिंपल। सो इनिशियली वेलोसिटी 0 है, जब ये वुडन प्लैंक से h हाइट पे है तो वेलोसिटी 0 है और वो ग्रेविटी से नीचे आ रहा है, और जब टकराया उस समय या उससे जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी -√2gh हो गई। टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी हो गई √gh और h/2 हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। सपोज यू नीचे आने वाले को मैं पार्ट 1 लिख देता हूँ और ऊपर जाने वाले को पार्ट 2 लिख देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट 1 में आते हैं हम लोग, पार्ट 1 इक्वेशन देखते हैं। तो मुझे किसी भी हाइट h पे चाहिए, राइट। आप देखोगे मुझे वेलोसिटी वर्सेस h का ग्राफ बनाना है। किसका बनाना है, आप देखोगे और ग्राफ इज वेलोसिटी वर्सेस h का ग्राफ बनाना है, ओके। कुछ चीज़ें मुझे मिल गई हैं, देखो मैं वो कर लेता हूँ जो चीज़ें मिल गई पॉइंट। अब देखो स्टार्ट में ग्राफ में पार्टिकल की हाइट कितनी है, h है, यहाँ h है, और वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो ये पॉइंट हो गया मेरा, राइट। अब देखो जब ये नीचे वुडन प्लैंक पे टकराने वाला है तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी, -√2gh हो गया, राइट। और इसकी वेलोसिटी -√2gh होगी और प्लैंक से हाइट कितनी होगी, 0 हो गई, राइट। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी देखो ऊपर की तरफ √gh हो गई, तो यहाँ कहीं हो गया। जस्ट बाद इसकी हाइट कितनी होगी, 0 होगी, और वेलोसिटी कितनी होगी, +√gh, क्यों, ऊपर है इसलिए। और h/2 हाइट जाने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो मीन्स h/2 हाइट जाने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। इतना ही देख के तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हो, राइट। इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा ऑप्शन राइट है, इतने से ही। लेकिन हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकली कर लेते हैं। तो पहले पार्ट 1 में हम लोग देखते हैं एट एनी हाइट कैपिटल H। सपोज इसको मैं कैपिटल H लिख लेता हूँ, इस वाले पार्ट को कैपिटल H, ओके। और ना H और H में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। H रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द वुडन प्लैंक, ओके। तो मान लो जब हाइट H पे था तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती, मान लो यहाँ से H पे है, मान लो यहाँ से मैं बना देता हूँ आपको डायग्राम, ये वाली बात चले, राइट। यहाँ से H पे है, एक जनरल पोजीशन H पे है, हाइट H पे है, तो डिस्प्लेसमेंट इतनी हो जाएगी, राइट। इसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, h - h। पार्टिकल यहाँ से रिलीज किया ना आप, u = 0। तो इस पॉइंट पे मैं इफ वेलोसिटी का मान लो v लिख दिया, तो आप क्या फॉर्मूला लिखोगे, v² = u² + 2a.s, है ना। तो वेलोसिटी v² = u² तो 0 ही हो गया, राइट। u² तो 0 ही हो गया, +2। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी नीचे होगा, राइट। यहाँ से यहाँ तक गया ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ रहा, तो दोनों नीचे, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। तो आप 2s लिख सकते हो, 2g, और s की जगह मैंने लिख दिया h - h, ओके। तो हमारा इक्वेशन जो दिख रहा है v² = -2g × कैपिटल H + 2gh। आप देख सकते हो ये कांस्टेंट है, ये पार्ट भी कांस्टेंट है। तो कहना राइट y² = दिस इज कांस्टेंट, तो मैं m h का ग्राफ बनाना है x + c, राइट। आप देख सकते हो, राइट। ये वाला ग्राफ दिख रहा है, ये कांस्टेंट है। कैन आई से दैट दिस ग्राफ विल बी पैराबोला, ओके। और ये थोड़ा सा मैथ्स आप याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों पैराबोला बनाया है, राइट। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, तो h से -√2gh पे जाना है तो मुझे पैराबोला बनाना होता है। ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, एरो ऐसे, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ था, फाइनली यहाँ पहुँचा है, ओके। क्लियर है।
वैसे ही मैं इस फर्स्ट पार्ट के लिए भी मैं सॉल्व करूं तो सेकंड पार्ट के लिए, सॉरी सेकंड पार्ट के लिए मैं सॉल्व करूं। सेकंड पार्ट में देखो पार्टिकल यहाँ से यहाँ चली है, राइट, सपोज h हाइट पे है, तो ऑब्वियसली यहाँ से नीचे से h हाइट पे है, उस समय इसकी वेलोसिटी सपोज v है। ओके, फिर से मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस, राइट। सो v स्क्वायर, u तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आप इसको मानोगे, राइट, यहाँ से ऊपर की जर्नी, u स्क्वायर क्या हो जाता, u नॉट का स्क्वायर मीन्स gh हो जाती, राइट, प्लस अब देखो 2, एक्सेलेरेशन क्या है, नीचे होती है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, और डिस्प्लेसमेंट देखोगा इसकी ऊपर है, राइट, डिस्प्लेसमेंट इसकी ऊपर है। ओके, तो ऑब्वियसली एंगल क्या होगा, माइनस में होगा, एंगल होगी 180 डिग्री, तो ये -2s हो जाता है, माइनस, इसको हटा देता हूँ, -2as, a की वैल्यू g है और s की वैल्यू यहाँ पे h ही है, राइट। फिर से आप ग्राफ देखो, इसको मैं थोड़ा सजा लेता हूँ, इज इक्वल टू -2gh प्लस gh, राइट। ये देखो पार्ट कॉन्स्टेंट है, कैन आई राइट, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये m है, ये x है प्लस c है, ऑब्वियसली ये भी क्या होगा आपका पैराबोला बना देगा, राइट। तो अगेन पैराबोलिक नेचर का ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा मैथ्स में इसको रिवाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, इनिशियली ये +√2 था, इनिशियली √GS था, और बाद में ये h/2 तक पहुँच गया, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता। ओके, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को मुझे एग्जाम में सॉल्व करना होता तो मैं ये जो आप देखोगे इसके इधर जो मैंने सॉल्व किया है इसके राइट साइड में, इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे, इफ़ ऑप्शन को आप गौर से देखोगे तो। ओके, अंदाज़ा आपको ये होगा ना इस ग्राफ कैसा जाएगा, राइट, कैसा जाएगा, टेढ़ा जा रहा है, ओके, या सीधा जा सकता है, ये हो सकता है। तो आप ऑप्शन को चेक करो, तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है मुझे, थोड़ा सा मुझे ये वाला ग्राफ दिख रहा है, ओके, ये वाला ग्राफ दिख रहा है। इफ थोड़ा सा मैथमेटिकली आप सही से करो, ये तो आप तुरंत ही कट कर दोगे, ये सब तुरंत ही कट दो, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसमें और इसमें, राइट, बस। ओके, यहाँ पे एरो थोड़ा गलत दे दिया है, तो ये एरो यहाँ होता है ना, इनिशियली आप जान रहे हो ये पोजीशन होता है और फर्स्ट वाली जर्नी का फाइनली होता है। तो ऑप्शन सी मोर और लेस आई विल कंसिडर एज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो थोड़ा लेंदी था बट ठीक है, चलता है। नेक्स्ट में चलेंगे हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करते हैं। Now what is the question? रीड करते हैं भाई साहब। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ऑब्वियसली वी कैन से दैट इट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड भाई, बताओ। इजंट इट इंस्टेंटेनियस स्पीड, आप कह सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। ओके, सही है, आप इसको कह सकते हो इट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसको। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व है। ओके, व्हाट दे हैव आस्क्ड यू डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 5। ओके, तो 0 तो भाई साहब यही है, 0 वाला पॉइंट यहाँ है मेरा, और 5 वाला ये है, इसका करस्पॉन्डिंग मैं इसमें मिला लूँ तो मुझे दिख रहा है ये 8 टाइप का है, राइट, 8। सो व्हाट इज डिस्टेंस? If you remember, distance is integration of magnitude of velocity dt, right? It's not v dt. Displacement होता है वो, okay? So can I say it is area under magnitude of velocity versus time curve? What is displacement? Displacement is area under velocity versus time curve. What is distance? It is area under magnitude of velocity versus time curve. Luckily मुझे magnitude of velocity versus time curve ही दिया हुआ है। एरिया निकालना बहुत आसान है। ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है ना, आप मान लो इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया और इस पार्ट को सी लिख दिया, तो ट्राइंगल ऑफ ए बी सी व्हाट इट विल बी, हाफ इंटू बेस देखो 5 है और हाइट कितनी है 8 है, तो ये होगी 20। सब ऐसा यूनिट में देखो तो 20 मीटर मेरा ये आंसर हो जाता है। ये फिल इन द ब्लैंक था, तो आई विल राइट आंसर 20, राइट। आई होप ये भी समझ में आ गया आपको। 4th क्वेश्चन, हाँ भूलना मत, हर एक क्वेश्चन के बाद आप रुक जाओ डिस्कशन के पहले, है ना, और फिर खुद से सॉल्व कर लो, फिर आप चेक कर लो कि डिस्कशन में आपने कुछ सीखा है तो अच्छी बात है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो मैंने आपको जस्ट बोला था, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होती है इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी dt, राइट, और दोनों इक्वल हो भी सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और नहीं हो सकता है। ओके, ये सब पढ़ते हैं आप थियरी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ माई क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज माई क्वेश्चन नंबर 5? Let's read. Helicopter rises from rest. Okay, rest on the ground
vertically upward with a constant acceleration of g. Okay, a food packet is dropped from the helicopter when it is height h. Okay, तो चलो थोड़ा डिस्कशन आप रुक के पहले सॉल्व करो फिर मेरे साथ करो. तो मान लो ये भाई साहब मेरा ग्राउंड था, यहाँ से एक्सेलेरेशन जी, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन जी से हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है. ओके, हेलीकॉप्टर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ से. ओके, तो जब ये यहाँ पे था, क्या बोला इन्होंने, एच हाइट पे था, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी रही होगी, राइट. मान लो ये हेलीकॉप्टर है, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और इसकी एक्सेलेरेशन थ्रू आउट क्या थी, एक्सेलेरेशन वाज जी, राइट. तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो एच हाइट पे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a.s से, राइट. सो इस जगह वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, क्वेश्चन में देखो लिखा है रेस्ट था तो 0 हो गया, प्लस 2. एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किधर है, नीचे होती है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं इस क्वेश्चन में, सॉरी, इस क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन ऑफ एरोप्लेन अपवर्ड ही है ना, तो एक्सेलेरेशन अपवर्ड है. और डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ से नीचे से वहाँ तक गया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता, वो भी अपवर्ड है. तो मैं प्लस 2as लिख लेता, a की मैग्नीट्यूड g और s की मैग्नीट्यूड h है. तो जिस समय h हाइट पे गया तो वेलोसिटी ऑफ, मुझे प्लेन पता चल गया, ये √2gh है. ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. अ फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज हाइट h. ओके, इसी समय यहाँ से फूड पैकेट रिलीज किया है. अब देखो यहाँ से जब फूड पैकेट को आप जस्ट रिलीज करोगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी वही हो जाती है जो कि हेलीकॉप्टर की होती है. तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, √2gh. ठीक है, इस फूड पैकेट की. अब ये ऊपर की तरफ जैसा हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी वैसा इसकी वेलोसिटी होगी इफ आप रिलीज करोगे, तो राइट. ये ऑब्वियसली ये थोड़ा ऊपर जाएगा, है ना, यहाँ कहीं ना कहीं जाके इसकी वेलोसिटी 0 होगी, रुक जाएगी, है ना, फिर वो नीचे आएगा, ऐसा इसकी पूरी जर्नी ऐसे रहेगी. ओके, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, चलो देखते हैं क्या है भाई. द टाइम टेकन बाय पैकेट टू रीच द ग्राउंड. मुझे टाइम निकालना है इस पैकेट को यहाँ से ऊपर जा के फिर नीचे आने में कितनी टाइम लगे. अब देखो ये इनिशियल पोजीशन हो गया फूड पैकेट के लिए और ये हो गई फाइनल पोजीशन. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल मिला लो, यही डिस्प्लेसमेंट होगी. इजंट इट, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड h है और नीचे है तो ये -h लिख दिया मैंने, राइट. तो फूड पैकेट के लिए देखो डिस्प्लेसमेंट मैंने -h लिख दिया. ओके, एक्सेलेरेशन क्या है, वो एयर में है तो एक्सेलेरेशन g होती, डाउनवर्ड होती, तो इसलिए मैं -g लिख दिया, एक्सेलेरेशन भी लिख दिया. जब रिलीज किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, √2gh थी, राइट. और मुझे क्या निकालना है, टाइम. इन चारों को देख के आपको क्या याद आता होगा, आपको याद आता होगा s = ut + ½ a t², राइट. वैल्यू रख लेते हैं, इसकी वैल्यू -h, u की वैल्यू √2gh इंटू टाइम और a की वैल्यू ½ g_t². आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक फंक्शन जैसा दिख रहा होगा. सबको मैं लेफ्ट में ले जाता हूँ. ओके, मैं सबको क्या करता हूँ, लेफ्ट में ले जाता हूँ और फिर इक्वेशन बनाता हूँ. ओके, चलिए ले जाते हैं लेफ्ट में. चलो भाई, तो मेरा इक्वेशन, इफ़ आप पिछले के पेज को देख लो तो ये हो जाता हमारा g/2t² माइनस √2gh t. ओके ओके, एंड -h इज इक्वल टू 0, राइट. अब सॉल्व कर लोगे ना, अब तो सीख है. t इज इक्वल टू -b मीन्स √2gh प्लस माइनस √b², तो 2gh हो जाती, -4a जो है g/2 है, -4ac/b², तो ये 2gh हो जाता है, राइट. तो सॉल्व करेंगे, √2gh, यहाँ देखो प्लस माइनस लिख दिया मैंने, और अंदर में देखो ये क्या हो जा रहा है, 2 + 2 1 + 4gh अपॉन, यहाँ आ रही है 2gh, राइट. ये समझ में आ गया आपको ये क्या हो रहा है, राइट. ओह सॉरी, यहाँ पे 2a होता है ना, तो ये g हो जाता है, सॉरी, यहाँ g हो जाता है. ओके, सॉरी. सो आप इसको देख सकते हो, इसको आप क्या लिखते, इसको ब्रैकेट में ले लेते, तो ये हो जाता है 2h/g प्लस माइनस √4h/g, राइट. ऑब्वियसली माइनस, ये जो माइनस साइन लोगे तो ये t क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो, तो डिस्कार्ड करना होगा. तो मुझे t की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, √2h/g प्लस √4h/g. इफ़ आप इसमें से √h/g को कॉमन ले लो तो √2 प्लस √4, तो 2 हो जाएगी. अब जानते हो √2 की वैल्यू 1.4 ले लो तो ये 3.4 √h/g मेरा आंसर दिख रहा है, राइट. ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग क्या है इसका ऑप्शन. देखो मेरा डी ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ये डी. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी. ओके,
आई होप अंडरस्टैंड कर रहे हो आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इक्वेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब हेलीकॉप्टर से कोई पैकेट को आप रिलीज कर रहे हो तो उस फूड पैकेट की वेलोसिटी वही हो जाएगी जो हेलीकॉप्टर की होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, इसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड था। चलिए अब 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बलून इज मूविंग अप इन एयर वर्टिकली अबव ऑन पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। ओके, सो बलून जो है ये पॉइंट ए, देखो आप डायग्राम में गौर करो, इससे ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, व्हेन इट इज एट अ हाइट h1, यहाँ पे है। ओके, अ गर्ल स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस d, ओके, मीन्स पॉइंट बी, यहाँ पे गर्ल है, राइट, d फ्रॉम ए सीज इट एट एंगल 45 डिग्री विद द रेस्पेक्ट टू वर्टिकल। देखो वर्टिकल से 45 डिग्री पे इसे बलून ये दिख रहा है, राइट, ये एंगल 45 दिया हुआ क्वेश्चन में। अच्छा, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगी, तो इसी डायग्राम में दिख रहा है ये 45 एंगल, इजंट इट h1 विल बी d फ्रॉम ज्योमेट्री। ओके, सिंपल। चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन बलून इज क्लाइम्स अप फर्दर हाइट h2, फर्दर हाइट h2 मीन्स यहाँ से h2 हाइट गया, देखो ये डायग्राम में h2 फर्दर हाइट गया। It is seen at an angle 60 degree with respect to vertical if girl moves further by a distance 2.464 d। मीन्स b से देखो आप c पे आगे, गर्ल अभी यहाँ पे है, मूव किया है। अब वो जो बलून है यहाँ पे है, तो वर्टिकल से कितने एंगल पे वो दिख रहा है, 60 डिग्री पे उसे दिख रहा है। ओके, सिंपल है। तो वो 60 है तो ये भाई साहब 30 हो जाता। What they have asked you, they have asked you what is value of h2। बहुत ही सिंपल, ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, तो ज्योमेट्री की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं। h2 की वैल्यू पूछा हुआ है, तो हम लोग पहले से देख रहे चुके थे, h1 की वैल्यू d हो जाती है, dd था। अब वो देखते हैं, देखो आप राइट एंगल ट्राइंगल देखो, इसको मान लो मैंने a लिख दिया, सॉरी ए सी तो bc लिखा हुआ है, इसको सॉरी d लिख दिया मैं, ठीक है। तो आप इफ देखो ट्राइंगल, मैं ये ट्राइंगल ले लूँ DAC, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे लिख दो आप tan 30 डिग्री। तो आप क्या लिखते, h2 प्लस d अपॉन बेस क्या हो जाएगा, d प्लस दिस, तो ये हो जाएगा 3.464 d, राइट। व्हाट इज रूट 30, tan 30 की वैल्यू भी दी है 0.5774, ओके, इज इक्वल टू h2 प्लस d अपॉन 3.464 d। Can't you find out h2 from here? Yes, I have solved this question. I have found out कि d की वैल्यू जो h2 की वैल्यू जो होनी चाहिए वो d के इक्वल होनी चाहिए। ओके, आप कर सकते हो, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ओके, सो वेयर इज आंसर d, ये b जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। सो इज इट फिजिक्स ओवर हियर? नो, दे हैव just ask you a geometry question, right? It's a geometry question. No, there is no physics at all. Okay, गलती से यहाँ पे पूछ लिया इन्होंने। चलिए, हो गया 6th क्वेश्चन। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। What is 7th question? It's the velocity versus time graph of a body in a straight line. Okay, why I'm telling you it's a velocity versus time graph? Why it is not a magnitude of velocity versus time curve? So we know that, अब देखो ग्राफ में देखो वेलोसिटी नेगेटिव हुआ इस पार्ट में, है ना, इस वाले पार्ट में देखो वेलोसिटी नेगेटिव है, राइट, इस वाले पार्ट में। तो अब इस पार्ट में गौर करो, मीन्स वेलोसिटी नेगेटिव हुआ है। तो वी नो दैट वेक्टर कैन बी नेगेटिव, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। सो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट इट्स अ वेलोसिटी वेक्टर वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, सिंपल। पॉइंट S इज एट अ 4.333 सेकेंड। ओके, तो can I add 4.333 second as 4 into 4 1/3 second, तो 13/3 सेकेंड की बात भाई साहब कर रहे हैं। ये जो पॉइंट S है, ये जो पॉइंट S है, ये 13/3 हो गया। अच्छा, 6 से इसको माइनस कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ये जो हाइट आएगी, ये जो बेस आएगा वो निकल सकता है, ठीक है, रहने दो, बच्चों वाला है। The total distance covered by the body in 6 seconds. We need to find out what total distance. अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस इज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, राइट, ये होती है। तो आप कहोगे ये क्या होती है, एरिया अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। ओके, ये होती है डिस्टेंस। बट ये तो ग्राफ दिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व का, तो क्या करें, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। एक तरीका ये कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो ये वेलोसिटी था, मैं अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व बनाऊंगा।
जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ तो दिक्कत ही नहीं है, ऐसा बना लिया मैंने ऐसा। जो यहाँ पे नेगेटिव हुआ था, जो पार्ट नेगेटिव था उसका मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिफ्लेक्शन बना लूँगा ऐसा, राइट। अब देखो डायग्राम को देख के मैं देखूँ तो ये तो पार्ट 4 था, ये पार्ट आपको 2 है, ये पार्ट जो है ये डायग्राम के अकॉर्डिंग 3 है, ये वाला जो पॉइंट है वो 13/3 है, राइट। और ये पॉइंट 6 था, इफ़ ये 6 है तो ये बेस आप निकाल सकते हो, 6 माइनस दिस, राइट, ये हो जाएगा 5/3। और ये जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग 2, यहाँ देखो -2 था, अब ऊपर ले जाओगे 2 हो जाएगा, राइट। अब इसी का एरिया अंडर कर्व निकाला है, तो आपको ये क्या दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर ये दिख रही है, दूसरी स्ट्रक्चर ये दिख रही है, राइट, ट्रापीजियम एंड ट्राइंगल। तो आप एरिया तो निकालना जानते हो, तो ये एरिया मैं लिखूँ तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये देखो ये वाला साइड क्या है, 1 का हो गया, ये वाला 1 है, और ये वाला जो साइड है ये 13/3 का है, मैं लिखता हूँ 1 + 13/3 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, इसकी ट्रापीजियम की हाइट 4 है, वो लिख दिया प्लस, इधर आ जाता है ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस कितनी है 5/3 की है, और हाइट कितनी है 2 की है, राइट। थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये कितनी हो जाती 16/3 इंटू 2, 16/3 इंटू 2 इज़ 32/3, राइट, प्लस ये तो 2 कैंसिल हो गया 5/3, तो ये दिख रही है मुझे 37/3 मीटर, ये आंसर हो जाता है हमारा, राइट। चलो चेक करते हैं ऑप्शन में है क्या, 37/3 है, तो मेरा ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो गया। ओके, सिंपल है। तो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफ्रेंशिएट करना हमें आना चाहिए, तो उसी पे एम्फेसाइज करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स रीड। Clock has a continuously moving seconds hand of length this 0.1 meter means okay, average acceleration of tip of hand in order of, then they haven't mentioned the time interval, right। so चलो हम लोग थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा। ये होगी मेरी क्लॉक, लेट ये सेकंड का हैंड है, इसकी लेंथ आपको गिवन है आपको 0.1 मीटर। ओके, सपोज इसको मैं रेडियस लिख देता हूँ। ऑब्वियसली आप इसका टिप देखोगे, टिप तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता रहेगा इस सर्कल पे, राइट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता रहेगा। ओके, तो मैं एक जनरल थीटा पे चला जाता हूँ, थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल चला होगा, इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सपोज v होगा, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v होगा, बट दोनों के बीच का एंगल देखो, सेंटर ऑफ थीटा होगा तो इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा हो जाएगा। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, अच्छा चेंज इन वेलोसिटी निकाल ही क्यों रहे हैं हम लोग, ओके, हम लोग चेंज इन वेलोसिटी इसलिए निकाल रहे हैं कि आप जानते हो एवरेज एक्सेलेरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है, ये वेक्टर होता है, राइट। तो इन दोनों वेक्टर जो है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो मैं डेल्टा वी वेक्टर का इफ़ मैग्नीट्यूड निकालना बैठता तो आप जानते हो a माइनस बी वाला आप सब्ट्रैक्शन करते हो, a² + b² + 2ab cos थीटा, सॉरी -2ab cos थीटा लिख दो, a² b² -2ab cos थीटा, राइट। इसको सॉल्व कर सकते हो ना, कर लेना, 2b sin θ/2 हो जाएगा, राइट। ये होगी चेंज इन वेलोसिटी। टाइम इंटरवल कितना टाइम लगेगा थीटा एंगल जाने में, θ/ω, राइट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। व्हाट वुड बी ओमेगा, इस केस में आप जानते हो 2π रेडियन चलने में ये जो टिप ऑफ सेकेंड है, ये 2π एंगल एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, 60 सेकेंड लेगा, ये इसकी ओमेगा हो गई, π/30 रेडियन पर सेकेंड, राइट। यहाँ तक क्लियर है आपको। अच्छा, आप ये भी जानते हो कि v = ω/r होता है, राइट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। चलो इसमें वैल्यू हम लोग पुट करें, डेल्टा v/डेल्टा t, डेल्टा v क्या आई थी मुझे 2v को मैं ω/r लिखूँ चलेगा, इंटू sin θ/2, ये हो गया अपॉन डेल्टा t की जगह θ/ω, तो ओमेगा ऊपर जाएगा, ω² हो गया। अब मैं नीचे लिख देता हूँ उसी पार्ट को, तो ए एवरेज जो हो गई मेरे पास 2ω² r इंटू sin θ/2 अपॉन थीटा है, राइट। सो 2 व्हाट इज ω², देखो π² / 30 का स्क्वायर हो जाता है 900, और r कितनी है 0.1 है, इंटू sin θ/2 बाई थीटा, राइट। अब देखो ए एवरेज जो है जनरली ये थीटा पे भी डिपेंड करेगा। अच्छा, ये पूरा चक्कर लगा लेता, एक चक्कर मान लो, ये पूरा एक चक्कर लगा लेता तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम ही हो जाती।
तो आपको इसका डेल्टा वी का वैल्यू क्या हो जाता, फिर जीरो हो जाता। डेल्टा वी की वैल्यू उस केस में आपको जीरो हो जाती, तो एवरेज एक्सेलरेशन जीरो होता। बट इन्होंने टाइम इंटरवल और सिचुएशन मेंशन नहीं किया है, तो इन जनरल बातें हम लोग कर रहे हैं, राइट। इफ़ यू नो देन पाई स्क्वायर, ये देखो ये 450 हो जाता, 450 हो जाता। और पाई स्क्वायर इफ़ आप जानते होगे तो अप्रॉक्सीमेटली पाई स्क्वायर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप 10 ले लोगे तो चलेगा, राइट। तो ये वे 1/450 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू अपॉन थीटा, राइट। अब आप इसको ऑर्डर लिखना चाहते हो, इसको मैं थोड़ा सा इग्नोर कर दूंगा। 1/450 को आप लिखना चाहोगे तो आप क्या लिख सकते हो, राइट। इसकी वैल्यू आपको अप्रॉक्सीमेटली क्या दिखेगी, इसकी वैल्यू आप अप्रॉक्सीमेटली इसकी देखोगे तो आपको ऑर्डर के फॉर्म में लिखना हो तो 10⁻³ ऐसे लिख सकते हो, राइट। मतलब देखो ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको लिखेगा 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻³ इजंट दिस विल बी कॉल्ड एज ऑर्डर। तो 10⁻³ इज ऑर्डर, बट इसे थोड़ा मेंशन करना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा रहता, ओके। बिकॉज इसका आंसर जीरो भी हो सकता था, बट जीरो मेरे ऑप्शन में भी नहीं है ना। एक पूरा चक्कर लगा लो तो ए एवरेज जीरो हो जाता, राइट। तो नहीं है, तो इसलिए मैं एक जनरल केस निकाल के आपको सॉल्व किया। तो आंसर तुक्काबाजी नहीं करना है, आप अच्छे से सॉल्व करके इसको ला सकते थे। आई होप आपको ये 8th क्वेश्चन समझ में आ गया, ओके। हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, व्हेन अ कार इज एट रेस्ट इट्स ड्राइवर सीज रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन इट वर्टिकली, ओके। जो कार रेस्ट पे है तो यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसे रेन का ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रहा है। इसका मैं सॉल्यूशन करूँ तो आप समझिए मुझे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके। When driving car with the velocity v, he says that rain drops. अब जब कार चलाने लगता है v स्पीड से तो वो क्या दिखता है, he sees that the rain drops are coming at an angle 60 डिग्री from horizontal, okay? तो मान लो ये horizontal में मान लेता हूँ, इससे 60 डिग्री ऐसा लग रहा होता है। किसको लग रहा था, मूविंग मैन को। तो रेन ड्रॉप जो मूविंग मैन को रखता है उसको VRM में बोल दूंगा, राइट। इफ़ यू नो वन इक्वेशन VRG इज इक्वल टू, रेन में करा होगा आपने, VRM प्लस VMG, राइट। या उल्टा भी लिख सकते हो, VMG प्लस VRM, इसका वेक्टर सम होता है। अब जानते हो मेरे चलने से VMG चेंज होगा, मेरे अलग अलग स्पीड लेने से VMG चेंज होगा। रेन का ड्रॉप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी थोड़ी चेंज होगी, इसका मतलब मैं VMG चेंज करूँगा तो VRM चेंज होगा। इधर मैग्नीट्यूड चेंज हो RM की, या डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो सकती है, राइट। तो सिचुएशन 1 में देखते हैं हम लोग कि कैसे सॉल्व करें। तो सिचुएशन 1 देखो, यहाँ पे मेरा VRG तो फिक्स हो गया, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, ओके। ये देखो मैं ऐसे बनाऊँ, ये मेरा VRM1 है, VRM1 सिचुएशन 1 में, ऑब्वियसली ये मेरा VMG1 है, VMG1 जिसकी मैग्नीट्यूड जो है आपको क्वेश्चन में दी है V है, राइट। और ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। आई होप समझ में आया आपको। ट्रायंगल लॉ आता होगा, दिस प्लस दिस इज दिस, राइट। ट्रायंगल लॉ से मैंने बना लिया ये डायग्राम, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। इट फर्दर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ कार टू समथिंग, है ना, कुछ कार का स्पीड बढ़ा देता है। अब दूसरे सिचुएशन में VMG का मैं यहाँ एरो लेके थोड़ा बढ़ा के यहाँ तक ले आऊँगा, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ है ये VMG2 है, राइट, वो VMG2 है, ओके, यहाँ तक, ओके। अब इसे क्या दिखता है, अब इसे ये दिखता है कि रेन ड्रॉप्स जो है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे मिला दूँ तो ये वाला जो है ये मेरा VRM2 हो गया, राइट। और हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री, राइट, ये लिखा हुआ है ना। द वैल्यू ऑफ बीटा इज क्लोज। अब इसकी वेलोसिटी को लिखा 1 प्लस बीटा V, राइट। तो मुझे बीटा निकालना है, ओके। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अब आप डायग्राम से देखो, इफ़ आप डायग्राम से देखो, ये V वेलोसिटी है, ये लेंथ V है। आप जानते हो लेंथ ऑफ एरो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ऑफ एरो होता है, ये V है। तो आप VRG निकाल सकते हो। आप tan 60 लिखो, आप tan 60 √3 होता है, विच इज़ इन दिस केस VRG अपॉन VMG1 मीन्स V है, मुझे VRG की वैल्यू आ गई √3V, ये आ गया मुझे, राइट। मीन्स इस एरो की लेंथ क्या है, √3V है। अब देखो ये 45 डिग्री एंगल बन रहा है, इजंट इट, ये और VMG2 इक्वल हो जाएगा, राइट। डायग्राम से आप देख सकते हो ज्योमेट्रिकली, राइट। तो कैन आई राइट VMG2, ओके, जो कि इन्होंने लिखा है विच इज़ 1 प्लस बीटा
इंटू वी, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, √3v आ रही है मेरे से दिखा, है ना। उस आप ये डायग्राम को फॉलो करो तो, है ना। तो आप ये देख सकते हो कि वी कैंसिल हो गया, 1 प्लस बीटा इज़ √3, सो बीटा इज़ √3 माइनस 1। आप जानते हो √3 1.732 होता है, -1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.73। सो बीटा का आंसर जो मिल रहा है 0.73, आई गेस ऑप्शन डी है। ओके और इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करना एक स्मार्ट मेथड होता है। इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन व्हाट कि VRG तो चेंज होने वाला है नहीं, तो मैंने एक बार एरो बना दिया VRG का, देखो ये वर्टिकल एरो बना दिया, इसे खिसकाया नहीं, राइट। और मुझे ये पता होना चाहिए, ये वाला पार्ट पता होना चाहिए, राइट। वेक्टर सम होता है ऐसा करने के बाद, और एक लाइन और पता होनी चाहिए कि लेंथ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ऑफ एरो, और हमारा फिर ज्योमेट्री से इक्वेशन सॉल्व हो गया। आई होप इस तरह से क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करना चाहिए। ओके चलिए, now let's start with the question number 10. Okay, what is the question number 10? अभी भी देखो JEE Mains 2020 में है, शिफ्ट में, ये वाले में। सम ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R, दो फोर्स लिया P एंड Q, उसकी रिजल्टेंट है R, वेक्टर है, राइट। सच दैट R एंड P हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड। ओके, तो इन्होंने कहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इफ मैं सॉल्यूशन करूँ तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज R। ओके, और R की मैग्नीट्यूड है P और इसकी भी मैग्नीट्यूड P है, राइट। ये इन्होंने कहना चाहा है। अब इन्होंने कहा कि एंगल थीटा दैट द रिजल्टेंट 2P एंड Q विल मेक विद द Q इज व्हाट। ठीक है, तो देखते हैं रिजल्टेंट ऑफ 2P एंड Q, रिजल्टेंट ऑफ 2P प्लस Q, सपोज मैंने इसे कुछ भी नाम रख दिया, R डैश रख दिया इस वेक्टर को, ये जो है आपको R डैश एंड Q के बीच का एंगल बताना है। एंगल क्या है ना, सिंपल है। अब देखो पहला इक्वेशन को देख के आप बहुत सारे तरह से कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो आप लिख सकते हैं P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस, उसके बीच का एंगल सपोज कुछ भी लिख देता हूँ मैं, बीटा लिख देता हूँ, बीटा है, P एंड Q के बीच का एंगल बीटा है, लेट, है ना, इज इक्वल टू R² लिखना चाहिए था। आप जानते हो R² की वैल्यू P² ही हो जाती है। तो फ्रॉम हियर कैन आई राइट Q² इज इक्वल टू -2PQ कॉस बीटा, सॉरी, क्योंकि कैंसिल हो गया, कैन आई राइट Q इज इक्वल टू -2P कॉस बीटा। ओके, क्वेश्चन 1 हो गई मेरे साथ। Q कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर है, वो नल वेक्टर है नहीं, तो कैंसिल किया जा सकता है। ओके, सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं, ये जो R डैश है उसका एंगल निकालना है मुझे P से। ठीक है, तो आप देखो सपोज ये P वेक्टर था, ये मेरा Q वेक्टर था, तो ये मेरा R वेक्टर है, राइट, R वेक्टर, राइट। अभी P एंड Q के बीच में सपोज ये एंगल बीटा थी। अब देखो 2P ऐसा वेक्टर होता, Q ऐसा होता, इजंट इट, 2P एंड Q के बीच में भी एंगल बीटा ही होगी, और इसका रिजल्टेंट जो है मेरा R डैश है, राइट। सिंपल, समझ में है, 2P एंड Q वेक्टर के बीच में भी एंगल बीटा ही होगी। ओके, ये सिंपल है। अब हमें क्या निकालना है, R डैश जो है Q से जो एंगल बना रहा है वो पता करना है, Q से ये एंगल आपको पता करना है। इफ आपने एंगल का फॉर्मूला पढ़ा होगा tan थीटा इज इक्वल टू, Q से एंगल पता करना है, तो मैं यहाँ लिखता 2P साइन बीटा अपॉन Q प्लस 2P कॉस बीटा, ऐसा मैं लिखता हूँ। सिंपल है, समझ में आया आपको, क्लियर है ना आपको। अभी यहाँ पे देखो 1 से देखो, ये Q इज इक्वल टू -2P कॉस बीटा है। अब यानी कि ये दोनों को आप Q प्लस 2P कॉस बीटा करोगे, टेंस टू 0 हो जाएगा। इजंट इट, मेरा tan थीटा जो है टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है ना, टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है। इसका मतलब थीटा π/2 या आप 90 डिग्री बोल सकते हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो मेरा आंसर डिग्री में लिखना था, तो माई आंसर विल बी व्हाट, 90 डिग्री। बहुत तरह से कर सकते हो आप, डायग्राम बना के भी कर सकते हो इस क्वेश्चन के साथ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ओके, लेट्स गो विद द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट रीड इट। Particle is moving along x-axis with the coordinate, with its coordinate with the t is given as, okay, इसकी x coordinate given है मुझे,
अंदर द पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग अ वाई एक्सिस. ओके, तो पहला जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है विद द कोऑर्डिनेट इसका गिवन है आपको ये, राइट. दूसरे पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड द स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज रूट वी. ओके, ठीक है, सिंपल है. तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं लोग. यहाँ पे सॉल्यूशन करो तो आप फर्स्ट पार्टिकल के लिए देखो x इज इक्वल टू गिवन है 10 प्लस 8t माइनस 3t स्क्वायर. देखो दो अलग अलग डायरेक्शन में जानबूझ के मैं सिग्निफाई करने के लिए आई कैप दे रहा हूँ. इसकी वेलोसिटी जो होती है फर्स्ट पार्टिकल की v1 वो आप क्या लिखते हैं dx बाई dt लिखते हैं, राइट. dx बाई dt ये क्या हो जाता है 8 माइनस 6t, राइट. आई कैप ये होगी फर्स्ट की वेलोसिटी. अब मुझे कब निकालना है, 1 सेकेंड पे निकालना है, तो 1 सेकेंड पे ये 2 आई कैप हो जाता है, राइट. अब दूसरे के लिए देखते हैं. दूसरा तो y डायरेक्शन में जा रहा है, इसका y कोऑर्डिनेट गिवन है 5 माइनस 8t क्यूब. बिकॉज y डायरेक्शन में जा रहा है मैं इसे j कैप लिखना नहीं भूलूंगा, राइट. तो v2 जो होता है वो dy बाई dt हो जाता है j कैप डायरेक्शन में, राइट. तो ये हो जाती है माइनस 24t स्क्वायर, राइट, j कैप. और 1 सेकेंड पे ये क्या हो जाता है माइनस 24 j कैप, राइट. 1 सेकेंड पे पूछा जा रहा है. What they have asked you? They have asked you speed of second particle as measured from the first particle. ठीक है, तो velocity of 2 with respect to 1 is what? अब जानते हैं v2 माइनस v1 हो जाता है ना, तो जाता माइनस 24 j कैप और माइनस ऑफ 2 i कैप. अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो v21 की मैग्नीट्यूड आप क्या लिखते हैं इसको देख के, माइनस 24 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर. देखोगे ये कितनी हो जाएगी रूट 580, रूट 580 आएगा. ओके, अब ऑब्वियसली देखो इन्होंने क्या किया है, v21 जो है इसको कहा कि रूट v है, तो आप v की वैल्यू बताओ. इजंट इट माई v विल बी 580. ओके, सो माई आंसर इज 580. यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया इन्होंने कि इन्होंने कहा कि देखो ध्यान से पढ़ना, स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज गिवन बाय रूट वी. ओके, रूट वी बोल दिया मीन्स इसको रूट वी बोला है, तो वी का जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड नहीं होगा ना, वो रूट ऑफ मीटर पर सेकेंड होना चाहिए. तो थोड़ा सा यहाँ पे भाई साहब ने गड़बड़ कर दी, चलता है लेकिन ठीक है. ओके, तो माई आंसर विल बी 580. लेट्स गो विद द सेकेंड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन which is 12th number question. Let's read the question. Particle moves such that its position vector is given like this. इसकी position vector ये given है आपको, where omega is constant and t is given as a time. Okay. Then which of the following statement is true about velocity and acceleration of particle? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है. अब क्लास में जाते होंगे तो क्लास में ये तो सॉल्व करा ही जाता है ये क्वेश्चन. देखो हमारे क्या लिखा हुआ है, आर पोजीशन वेक्टर गिवन आपको, देखो कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप. तो आप देखो क्या मैं इसे x बोल सकता हूँ, यस x कोऑर्डिनेट, ये कह सकता हूँ y कोऑर्डिनेट. कहना राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान से देखो 1 हो जा रहा है, राइट. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है. इजंट इट फ्रॉम हियर, इजंट इट दिस सर्कल का इक्वेशन है. Can I say that particle is moving on circle? Is moving on circle या circular motion कर रहा है. इसी को देख के आप सर्कल का सेंटर क्या बोल देते हैं, आप सेंटर बोल देते हैं 0,0, राइट. एंड रेडियस क्या बोल देते हैं, 1 बोल देते हैं, राइट. रेडियस 1 बोल देते हैं. मीन्स सर्कल पे जा रहा है वो पार्टिकल, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस. अच्छा, अब सर्कल पे जा रहा है, ये यूसीएम भी हो सकता है और नॉन यूसीएम भी हो सकता है. तो चेक करते सकते हैं. यहाँ पे मैं वेलोसिटी लिखता हूँ. वेलोसिटी लिखता तो क्या करता, मैं डी आर बाई डी टी कर देता, इसको डिफ्रेंशिएट करता. इफ़ आपको डिफ्रेंशिएशन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं. माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप हो जाता, ये हो जाती प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप. ये वेलोसिटी वेक्टर है. इसका मैग्नीट्यूड निकालने बैठूँ तो ये क्या हो जाता, अंडर रूट इसका स्क्वायर, ये हो जाता ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. इजंट इट, इसकी वैल्यू ओमेगा दिख रही है आपको, यस. वेलोसिटी ओमेगा है, इजंट इट, ओमेगा इज कांस्टेंट, यस. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट. कैन आई से दैट नाउ
particle is doing UCM, particle is performing यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद द वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, राइट। सिंपल बात है, यूसीएम जा रहा है। अच्छा, यूसीएम जब है, आप जानते हैं यूसीएम में जो एक्सलेशन होता है, एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल क्या होती है, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा टुवर्ड सेंटर, कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पे पार्टिकल है, इसकी एक्सलेशन की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड द सेंटर, इधर होगी एक्सलेशन। ओके, अब इस डायग्राम में देखो पार्टिकल किस डायरेक्शन जा रहा है ये भी देख के बता सकते हो। t=0 पे आप देखो cos 0 1 होता है, आई कैप हो जाती है, राइट, है ना। और t=0 पे ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो t=0 पे पार्टिकल जो है यहाँ पे, राइट। अच्छा, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। t=0 पे देखो आई कैप 0 हो जाता है, राइट, t=0, और t=0 पे आप देखते प्लस ओमेगा जे कैप होता, मतलब ये जो है ऐसे जा रहा था t=0। ओके, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है आप जानते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू पाथ। तो इसी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको ऐसी दिखती है। ओके, और डायरेक्शन पोजीशन कैसा दिखता है आपको, ये सेंटर से देखो, ये सेंटर से आप देखो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। तो पोजीशन वेक्टर कैसा दिखता है आपको, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, राइट, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ओके, चलो बहुत कुछ कर लिया, आप देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। तो आप देखो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है भाई साहब, फर्स्ट ऑप्शन मेरा है ये वी एन ए, वी वेक्टर एंड ए, देखो बोल्ड से लिखा गया है वी एन ए वेक्टर, मीन्स वेक्टर की तरह, बोथ आर पैरेलल टू आर। नो, ऑब्वियसली वी और ए क्या पैरेलल टू आर है, नहीं, एक्चुअली है क्या, वी जो है आर के परपेंडिकुलर है ना, और आर और ए जो है एंटी पैरेलल आपस में। तो ये तो रॉन्ग हो गया मेरा ऑप्शन, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ओके, तो मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, दूसरे ऑप्शन में जाते हैं। वेलोसिटी वेक्टर v इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, यस। देखो आप r वेक्टर और v वेक्टर में एंगल 90 डिग्री है, यस। एंड a इज डायरेक्टेड अवे, सॉरी, a इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, नहीं, आप देख सकते हो एक्सलेशन जो है टुवर्ड्स ऑरिजिन है, तो ये ऑप्शन भी मेरा रॉन्ग हो गया। वेलोसिटी एंड a बोथ आर परपेंडिकुलर टू r, रॉन्ग है। आप जानते हो वेलोसिटी तो r के परपेंडिकुलर है, बट एक्सलेशन जो है r के एंटी पैरेलल है। अब बच्चा डी राइट होना चाहिए, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, राइट है, ये पार्ट राइट हो गया। ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑरिजिन, यस, ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑरिजिन, सो हमारा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो गया। ओके, आई होप समझा ये यूसीएम, और भी तरह से, बहुत तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आई हैव जस्ट गिवन यू वन पर्सपेक्टिव वेयर यू कैन एक्चुअली सी ऑल्सो, राइट, यू कैन फील ऑल्सो कि व्हाई इट इज गोइंग ऑन सर्कुलर मोशन, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है डिस्टेंस x कवर्ड बाय पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विद द टाइम इज गिवन लाइक दिस। चलो लिख लेते हैं थोड़ा, x² इज इक्वल टू a_t² प्लस 2bt प्लस c, राइट। एंड बेसिकली दे आर आस्किंग यू a एज अ फंक्शन ऑफ x, राइट, और x⁻n के टर्म आएगा और n की वैल्यू बतानी, सिंपल है। मैं दोनों तरफ टाइम से डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ये क्या हो जाएगा भाई, 2x dx/dt, आपको थोड़ा सा चेन रूल आना चाहिए, 2at प्लस 2b, राइट। अब देखो dx/dt को वेलोसिटी लिख सकता हूँ, 2 उधर ले जाओ, तो x इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू at प्लस b हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसको एक बार और टाइम से डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, फिर से इस इक्वेशन को, ये क्या हो जाता है, x dv/dt प्लस v dx/dt, आई एम यूजिंग व्हाट, प्रोडक्ट रूल, इज इक्वल टू a, इधर देखो डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम से, तो ये हो जाता, तो ये होगी x dv/dt प्लस देखो ये v² हो जाएगा, dx/dt इज v, तो v² इज इक्वल टू a। सो कैन आई राइट dv/dt विच इज एक्सेलेरेशन, राइट, इज इक्वल टू, मैं एक्सेलेरेशन को यहाँ कैपिटल ए लिख लेता हूँ, तो a आप कन्फ्यूज हो गए, स्मॉल a एक्सेलेरेशन है यहाँ पे, राइट। तो ये जाता है a माइनस v² बाई x, राइट, ये हो गया हमारा। अब देखो a तो कांस्टेंट है, a कोई कांस्टेंट है, v², अब इस इक्वेशन से मैं v निकाल सकता हूँ, ये होगा at प्लस b बाई एक्स, तो मैं वो पुट कर देता हूँ यहाँ पे। देखो मेरा एक्सलेशन है dv/dt इज इक्वल टू a माइनस v² मीन्स at प्लस b बाई एक्स का स्क्वायर,
ऐसा अपॉन एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब और थोड़ा और कर लेते हैं यहीं पे, मान लो इसको ऐसे कर लो, तो यहाँ लिखते ए माइनस ये क्या हो जाता है देखो, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू टी, ओके, अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, राइट। थोड़ा और लिखो, इसी को इक्वल करते जाता हूँ मैं, ये हो जाता है ए एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लोगे, एक्स स्क्वायर क्या है, ए टी स्क्वायर, इसको ए से मल्टीप्लाई करते जाओ, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी ए, ओके, माइनस में ये सब आ जाएगा, ए स्क्वायर, सब कैलकुलेशन है ये तो खुद ही कर लो, सॉरी, माइनस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, हो गया, अपॉन एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो एक्स क्यूब हो गया, राइट। अब देखो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, 2ab इससे कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा, सी ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, तो एक्सलेशन ये हो गया। देखो सी ए माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, सो कैन आई राइट एक्सलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस 3 या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस 3, राइट, इजंट इट, यही आपसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा आपका एन का वैल्यू 3, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता 3, ओके, सिंपल, थोड़ा सा मेहनत करने वाली बात थी ये इस क्वेश्चन में। चलिए ये हो गया हमारा 13th क्वेश्चन। Let's start with the question number 14. What is question number 14? Ship A is sailing towards northeast, okay, with a velocity of this much. Velocity vector आपको given है A का, where I is points towards east and J towards north. Okay, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना ही लेता हूँ। मान लो राइट में ईस्ट है और ऊपर में नॉर्थ है। लेट ए ऑरिजिन पे है, अभी मान लेते हैं ए ऑरिजिन पे है, तो इसकी वेलोसिटी जो है 30 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ ए मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए इज गिवन एज 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप किलोमीटर पर आवर, ओके। शिप बी इज एट अ डिस्टेंस 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप ए, तो यहाँ से 80 ईस्ट और नॉर्थ में 150, राइट। तो मान लो ये यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, और ये मेरा दिया हुआ है 80 और ये गिवन है 150, है ना। क्वेश्चन ये दिया हुआ है देखो, किलोमीटर, राइट, बी वहाँ पे। सो बी इज एट अ डिस्टेंस 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो इसकी वेलोसिटी जो है वेस्ट की तरफ है, मतलब इधर होगा, इधर है ना, इधर। तो वेलोसिटी ऑफ बी इज गिवन एज, वेस्ट को मैं माइनस आई कैप लिखूंगा, तो मैं आई विल राइट माइनस 10 आई कैप, वेलोसिटी बी गिवन आपको क्वेश्चन में, ओके। देन क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू ए विल बी एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी, ओके, ए विल बी एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी एट व्हाट टाइम, आपको टाइम बताना है जब ए बी से मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, ओके। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बी देखते हैं, तो कैन आई राइट, ये सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गिवन है, आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाता है, 0 हो जाता, राइट। वेलोसिटी ऑफ बी ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, ए माइनस बी कर देते, राइट, तो ये हो जाता 40 आई कैप प्लस 50 जे कैप, राइट, इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ओके। आप देख सकते हो ये 80 है और वो 150 है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इस डायरेक्शन में। डिस्टेंस वाइज देखोगे तो ये 80 100, यहाँ पे ये 100 की तरह होता है, 100 मीटर या किलोमीटर था ना आपका, ये किलोमीटर इधर से ज़्यादा है। और बी क्या है, इसको रोक दो, बी स्टैटिक हो जाएगा हमारे बी के फ्रेम से, स्टैटिक है, और ए ऐसा जा रहा है, इजंट इट। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये जो परपेंडिकुलर मैंने बनाया, यही मिनिमम डिस्टेंस है, राइट। अच्छा, जब मिनिमम डिस्टेंस है, अब देखो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हो जाता, ये एरो हो जाता पोजीशन, ये ऐसा होता, और वेलोसिटी कैसा ऐसा, इजंट इट, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यस। कैन आई राइट एट मिनिमम डिस्टेंस r of a with respect to b is perpendicular to velocity of a with respect to b। एक तरीका ये है, दूसरा ज्योमेट्री से भी है, निकालना पड़ सकता है आपको, ओके। तो मैं ये कर लेता हूँ, आप ज्योमेट्री से भी कर सकते हो। सो एट टाइम t, आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम t,
जब ये हो रहा है, बट जब भी हो रहा है एट टाइम टी तो ये कंडीशन फुलफिल होगा मिनिमम डिस्टेंस के लिए, राइट। देखते हैं एट टाइम टी, तो वेलोसिटी एट टाइम टी ए और बी, जो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो कांस्टेंट ही है ना, ये तो चेंज होगा नहीं, मुझे पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, राइट, सिंपल है। और पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो पहले पोजीशन ऑफ ए निकाल लेते हैं हम लोग। क्या होगा पोजीशन ऑफ ए, क्या होता, वेलोसिटी ऑफ ए गिवन आपको टाइम टी में क्या होगा, इससे टी से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि एक्सीलरेशन तो है नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये जाता 30 टी आई कैप प्लस 50 टी जे कैप। इफ आपको याद है ना पोजीशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब ए तो जीरो है तो इसलिए ये हो गया। पोजीशन ऑफ बी एट टाइम टी क्या हो जाता है पोजीशन, तो पोजीशन ऑफ बी आप जानते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट। I can write it as a displacement of B, okay, plus initial position of B, right, ये हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ B के लिए फिर से ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन देखो, वेलोसिटी ऑफ B कांस्टेंट है तो हाफ ए टी स्क्वायर जीरो हो जाता, ut लिखना होता तो मैं लिखता -10t आई कैप, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ओके, प्लस आर आई क्या थी, इनिशियल पोजीशन क्या थी, आप देखो 80 आई कैप प्लस 150 जे कैप थी इसकी, है ना। तो आर बी ए क्या हो जाएगा मेरा, आर बी माइनस आर ए, तो ये माइनस वो कर दो, ठीक है। तो देखो आई कैप देखो ये आई कैप है, ये आई कैप है, इसको उससे माइनस करना है, राइट। तो -10 और -30 तो -40t हो जाता, ओके, और 80 प्लस 80 ये हो गया मेरा आई कैप, ओके, प्लस जे कैप में देखो 150 है, वहाँ पे 50t है, मैं लिखता 150 माइनस 50t जे कैप, ओके। इस पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए है, और वेलोसिटी ऑफ बी ए विद रेस्पेक्ट टू बी लिखो या बी विद रेस्पेक्ट टू ए लिखो, उसका माइनस लिख लेते हैं ना। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए लिखना होता तो मैं जस्ट उसका माइनस लिख लेता, -40 आई कैप -50 जे कैप, राइट, ऐसा। और मुझे डॉट अब थोड़ा सा जगह चाहिए तो मैं राइट साइड का थोड़ा सा मिटा दूँ, ये डायग्राम को हटा लेता हूँ, ओके। अब इस क्वेश्चन को बहुत तरह से किया जा सकता है, ज्योमेट्री से भी कर सकते हो, ज्योमेट्री ये थोड़ा आसान रहेगा, बट देख रहे हो ये भी थोड़ा लेंदी ही जा रहा है, आप ज्योमेट्री से भी कर सकते हो। मैंने इसे स्टार्ट कर दिया तो मैं ऐसे ही करता जा रहा हूँ, ओके ओके। हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर होगा, इजंट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होना चाहिए, इफ परपेंडिकुलर है तो, है ना, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। कैन आई राइट आर ए बी और बी ए डॉट बी ए बी शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना। मैंने बी ए निकाला, चलो निकाल लेते हैं ना। डॉट प्रोडक्ट में क्या करना होता, आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये -40 से मल्टीप्लाई करते, ये 1600t हो जाता, और इसको करते तो -3200 हो जाता, राइट। जे कैप को जे कैप से, -50 को इससे करते तो माइनस हो जाता -7500, ओके, और हो जाता +2500t, ओके, इज इक्वल टू 0। तो आप ये देख सकते हैं 4100t इज इक्वल टू ये 71000, राइट। तो t की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 107004100 आ रहा है, राइट। आप देख सकते हो ये 3 से कम है और 2 से जो ज़्यादा ही है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसको मैंने सॉल्व किया था तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 2.6 सेकेंड आया था, राइट। इसको आप सॉल्व कर लेना, सब देखो मीटर पर सेकेंड में, तो मेरा आंसर जो होता है ये बी वाला आंसर हो जाता है। मैंने एक तरीका बताया, इसको और भी तरीके से किया जा सकता है, ओके। दिस वॉज 14th नंबर क्वेश्चन। लेट्स गो टू 15th नंबर क्वेश्चन। Let's start with the 15th number question. Magnitude of A1 is 3, magnitude of A2 vector is 5. Magnitude of resultant of A1 and A2 vector, ये तो बोर्ड लिखा हुआ है, मतलब सब समझो वेक्टर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऐसा 5 दिया हुआ है। देन वी नीड टू फाइंड आउट दिस, ओके। सिंपल क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो देखो आपको A1 की मैग्नीट्यूड गिवन है 3, A2 की मैग्नीट्यूड गिवन है 5। तो अब A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता, आपको याद है √, आप जानते हो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा, वेयर cos थीटा इज एंगल बिटवीन A1 एंड A2, ओके। सो इसकी मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 5 इज इक्वल टू √,
9 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा अननोन है हमारे लिए, राइट। हाँ, बेसिकली इसके A1 A2 भी रखोगे तो चलेगा आपको, ये 2 A1 A2 रहने दो। ओके, सो यहाँ देखो आप स्क्वायर करते 25 9 प्लस 25 प्लस 2, इसको A1 A2 को कॉस थीटा को A1 डॉट A2 लिख सकता हूँ मैं, देखो काम में आने वाला इसलिए 25 कैंसिल हो गया, राइट। तो A1 डॉट A2 जो आ रहा है मुझे, या A1 A2 कॉस थीटा जो आ रहा है -9/2 आ रहा है। ओके, ये मुझे आ गया, ठीक है। A1 डॉट A2 की वैल्यू आ गई -9/2। ओके, फिर अब क्या करते हैं देखते हैं, देखो नेक्स्ट पार्ट। अब मुझे निकालना जो है उस पर आ जाते हैं हमारा। तो हमें जो निकालना है ये निकालना है, तो ये क्या है लिख लेता हूँ, 2A1 वेक्टर प्लस 3A2 वेक्टर डॉट 3A1 वेक्टर -2A2 वेक्टर, राइट। ये करना है, तो अब एक करके करो, इसको इधर ले जाओ, तो 6A1 डॉट A1 क्या होता है, A1 का स्क्वायर हो जाता है। इसको फिर इससे डॉट करोगे तो 2 इंटू -2 -4 हो जाता A1 डॉट A2। देखो मैंने इसलिए वो निकाल के रख दिया था, राइट। अब इससे आ जाते हैं, इसको इससे करो तो ये जाता 339 और A1 डॉट A2। आप जानते हो A2 डॉट A1 इज़ A1 डॉट A2, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो -6A2 स्क्वायर, ये निकालना है मुझे। 6A1 स्क्वायर कितनी हो जाती, 9, 6 इंटू 9 -4। अब देखो ये क्या हो जाएगा, +5, सॉरी इसको थोड़ा हटा लो, +5 A1 डॉट A2 है, राइट, -6A2 स्क्वायर मीन्स 25। तो वैल्यू भी पुट कर लेता हूँ, 54 हो गया, +5 इंटू -9/2 -150। ओके, ये कितनी हो गई भाई, 54 -45/2 -150 निकल जाएगा आपसे, ये आ गया हमारा। तो 54 -45/2 -1, ठीक है, कर लो, -237/2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू करेंगे -118.5। ये आ गया मुझे, सॉल्व कर लेना आप खुद से, सिंपल है। तो ऑप्शन में मैच कर रहा है, यस डी से मैच कर रहा है, दिस इज डी, डी डी डी, ये मेरा डी आंसर हो गया। ओके, तो इस पार्ट 1 मैं यहीं पे एंड करता हूँ, इतना ही करते हैं, फिर पार्ट 2 भी मैं बनाऊँगा, 15 और क्वेश्चन बनाऊँगा मैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में आप वेट करेंगे। और मेजर आपको करना क्या है कि हर एक क्वेश्चन जब है, क्वेश्चन के बाद खुद से रुक जाइए, खुद से सॉल्व कर लीजिए, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, आपका एक मेथड होगा, राइट। देन यू जस्ट सी हाउ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन, राइट, एंड यू कैन मैच बोथ मेथड्स। ओके, कुछ नया सीखने को मिलेगा, उसको नोट्स में आप लिख सकते हैं, राइट। एंड एंड पार्ट में आप जानते हो कि जेईई मेंस में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, एंड इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी के सहारे आप फिर से एक बार रिवीजन हो जाते हैं सारे कॉन्सेप्ट का, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट जेईई मेंस में ऐसे भी नहीं एकदम ही बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट, इट टेक्स टाइम। ओके, चलो यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म करते हैं हम लोग, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, बताइए कि भाई यहाँ पे जेईई मेंस का आप प्रिपरेशन एंड टाइम में कर सकते हैं इस वे में। ओके, चलो, थैंक यू।